ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ resistivity ਦੀ and then ਕੁਝ units ਦੀ and then we'll talk about the very important Nernst equation, right? So we'll start it. Let's get started with Ohm's law. तो Ohm's law basically ਆਪਾਂ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਦਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Ohm's law ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਣੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਸਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਓਮਸ ਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is directly proportional to current. So V is directly proportional to I, where V is a potential difference and I is a current and R is a resistance. So V is equal to Ri and R is a resistance. So अगर resistance करनी है ताएं कर लो, voltage करनी है ताएं कर लो, current करना है ताएं इदा कर लो। इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਅਸੀਂ rotate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, right? So what is resistance? Resistance ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Resistance obstacle. Obstacle मतलब रुकावट, ठीक है। ਇਹ obstacle ਹੁੰਦੀ ਹੈ, रुकावट ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the flow of current। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਮ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦਾ ਓਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 1 ਓਮ। ਉਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ 1 ਓਮ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 1 ਵੋਲਟ ਅੰਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ 1 ਅੰਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਦ ਥਰੂ ਕੰਡਕਟਰ ਬਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ potential difference of 1 volt, right? So conductance एक नवी टर्म मे बी कंडक्टेंस भी आप पढ़िया होया 10 च। कंडक्टेंस की हुंदा हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। सो रेजिस्टेंस अगर ऑब्स्टेकल हैगा इन द फ्लो ऑफ करंट तो कंडक्टेंस की करेगा? हेल्प करेगा इन द फ्लो ऑफ करंट, राइट। सो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इहदा यूनिट हुंदा है 1 ओवर ओम, मतलब रेजिस्टेंस इज ओम, सो इहदा रेसिप्रोकल है तो इहदा यूनिट भी रेसिप्रोकल होएगा 1 ओवर ओम। वी आल्सो कॉल्ड इट एज ओम इनवर्स, राइट। सो ओम नु अगर ਅਸੀਂ उल्टा करिए तो ओम की बनेगा? ओम नु ਅਸੀਂ अगर उल्टा करिए तो बन जाता है MHO, ठीक है। MHO ओम नु अगर ਅਸੀਂ उल्टा करिए तो ਇਹਦਾ यूनिट हो जाता है। कंडक्टेंस का यूनिट की है मोहो, और विच इज ऑल्सो नोन एज साइमन, राइट। सो रेजिस्टिविटी इज वंस ऑल्सो टर्म। रेजिस्टेंस जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी लेंथ दे, जिन्नी ज़्यादा लेंथ उन्नी ज़्यादा रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी एरिया दे, जिन्ना ज़्यादा एरिया उन्नी घट रेजिस्टेंस, राइट। सो इनू ही आप कंबाइन करिए, अगर दोनों कंपेयर करिए। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हुण L ओवर A नू आपां की कहने आ? सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। अगे जाके भी आएगा इत्थे। आ चीज़ जिहड़ी है ना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो सेल कॉन्स्टेंट ये होंगे, ठीक है। सो ये यूनिट्स आ, फिर कंडक्टिविटी दे यूनिट्स आ गए Kc 1 ओवर रो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज बेसिकली इन्ना की है, ठीक है। हुण अगर L ओवर A सेल कॉन्स्टेंट अगर यूनिट्स की गल करिए तो L हो गया साढ़े को सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ सेंटीमीटर एंड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कटिया गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, ठीक है। तुसीं इहदा एक बार स्क्रीनशॉट लै सकदे हो, जस्ट आप पढ़न वाली चीज़ है, कुछ ज़्यादा ये हैवी नहीं है जो असीं 10th च पढ़े हुए हैं। नाउ मेन थिंग जो साढ़े को आ रही है दैट इज नर्नेस्ट इक्वेशन। So this is the one which we need, that is Nernst equation. This equation is used to predict the effect of concentration and temperature on an electrode potential. Basically ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E cell ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ E0 ਸੈੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫॉर ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, ਰਾਈਟ। सो वट इज अ सिंगल सेल? इन अ केस ऑफ सिंगल सेल जो ई सेल आप कैलकुलेट करते हैं, ई सेल कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। 2 तरह की साढ़े को नर्नेस्ट इक्वेशन होंगी, 2 तरह ड्राइव होंगे। एक तो होंगे सिंगल सेल, एक होंगे डबल सेल। नाउ वट इज सिंगल सेल? बेसिकली अगर मैं गल करा इनू लैके चलना, अगर सिंगल सेल मतलब कि अगर मैं कॉपर लैके चलना इत्थे, ठीक है। सपोज करो कि कॉपर 2 पॉजिटिव आ प्लस 2 इलैक्ट्रॉन आ गए साढ़े को कॉपर दे, मतलब कॉपर जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਕੋ ਘਾਟ है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ देना है, ठीक है। इलैक्ट्रॉन्स 2 देते, साढ़े को कॉपर आ गया। ਇਹਦੇ 'ਚ सिर्फ एक चीज़ यूज हुई है, ਉਹ ਕੀ ਆ? कॉपर, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सिंगल सेल। डबल सेल ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉपर भी नाल ऑक्सीडाइज हो जाए, उधरों ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सिल्वर भी ले आंदा सिल्वर भी रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइज
रिड्यूस हो जाए ਜਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਮੀਨਸ ਵਨ ਸੈਲ ਓਨਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਯੂ ਡੂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈ ਸੈੱਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ। ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ठीक है, दो एरो रिडक्शन, मतलब पहले वाले जो ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले रिडक्शन, जो आप पहले पिछले चैप्टर लेक्चर्स करके आए हैं, ठीक है। माइनस RTNF एक तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। लॉग M ओवर MN पॉजिटिव, M इधर वाली टर्म पहला, फिर बाद उधर वाली टर्म, ठीक है। राइट हैंड साइड वाली टर्म ऊपर लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली नीचे लिखनी है। सो ई नॉट सेल माइनस ये आर की वैल्यू होंगी है 2.303, आर दे अगे लिखना है 2.303 RT ओवर NF लॉग M ओवर MN पॉजिटिव, ठीक है। हुण सब दी वैल्यू जो आप फिल कर देंगे ना, देखो आर दी वैल्यू 8.314 जाउल किलो मोल पर मोल, ठीक है। T 298, टैंपरेचर 298 कैलविन हमेशा लेने आप स्टैंडर्ड। N हैगा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स इत्थे साडे को यूज होए है ना, ओ वाले इलैक्ट्रॉन्स, राइट। सो F इज फैराडे 96500, ठीक है। जदों असीं सारियां वैल्यूज नूं इत्थे पुट करांगे, ठीक है, विल गेट द वन सिंपल इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन, जो साडा फॉर्मूला बनेगा ई सैल इज इक्वल टू ई नॉट सैल। ये हमेशा सानू जदों भी ये सैल दिता होगा इत्थों सानू कढना पएगा, बिकॉज इत्थे साडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोवें चीज़ां सानू मिलणगियां। माइनस 0.0591 ओवर N लॉग 1 ओवर MN पॉजिटिव, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल वाला जिहड़ा हुंदा है, क्योंकि ये ना इत्ते पॉजिटिव चार्ज है ना नैगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। सो इट विल टेक आपां इहनूं 1 लैके चलांगे, ठीक है। सो 1 ओवर MN पॉजिटिव, ठीक है। बेसिक ए जो फॉर्मूला है ए तुसीं याद करना है, इहनूं तुसीं रिमेंबर करना है, इहनूं तुसीं लिख लो, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो नैक्सट आपां चलदे हां डबल सेल वाल। इट्स इंपॉर्टेंट गल किया, फॉर सिंगल सेल ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज होना फॉर सिंगल सेल, ठीक है। अगर आप एक एग्जाम्पल देख लीए, सो साडे को ई नॉट सेल दिता होंदा है कॉपर टू पॉजिटिव, ये की होया, ये साडे को की हो गया, इधर साडे को पॉजिटिव सी, इधर साडे को घट गया, दैट मीनस ऑक्सीडेशन होगी इत्थे, ठीक है। वी आर गिवन विद ऑक्सीडेशन माइनस 0.34, ठीक है। ऑक्सीडेशन देती है, व्हाट विल बी द ई सेल ऑफ इफ कॉपर टू पॉजिटिव इज 0.01 M। एक कॉन्सेंट्रेशन दी होंगी है जो असी इत्थे यूज करनी है, आ वाली चीज जो असी आ वाली चीज यूज करनी है, ठीक है। ओदी कॉन्सेंट्रेशन दी है Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। हुण इहदी इक्वेशन किद्दां बनेगी, आपां हमेशा क्या रिडक्शन पोटेंशियल यूज करनी है, ठीक है। रिडक्शन मीनस कि इहदे को घाट सी, 2 इलैक्ट्रॉन दिते, कॉपर पूरा हो गया, मतलब वो फुलफिल हो गया, ठीक है। ई नॉट सानू दिता होया माइनस 0.34, हुण ये ऑक्सीडेशन दिती है, असी रिडक्शन करनी है, तो साइन चेंज 0.34 हो गया, ठीक है। सिंपली इक्वेशन जो है फिल कर देना, ई नॉट सेल 0.34 सानू गिवन है, 0.0591 ओवर N नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, कितने इलैक्ट्रॉन्स असी उन्होंने दिते हैं 2 लॉग 1 कॉपर, जो इलैक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी है तो 1 यूज करांगे। कॉन्सेंट्रेशन कॉपर की सानू दिती हुई है 0.01 कॉपर टू पॉजिटिव दी, ठीक है। इनू सॉल्व करांगे, वी विल गेट द आंसर, ठीक है। होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर होगी। ये रिलेटेड होर तुसीं न्यूमैरिकल्स अपनी बुक्स के विच सॉल्व कर सकते हो, NCERT भी हैगे आ, ठीक है। डबल सेल, हुण डबल सेल आ गया, ठीक है। सिंपली उस तरह ई सेल, ये साडे को डबल सेल मतलब दो चीज़ां साडे को आ गई, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RTNF लॉग, आ वाली टर्म पहला लिखनी, ओ वाली टर्म बाद च लिखनी, ठीक है। इधर वाली पहला लिखनी, फिर वैल्यू सारे दी पुट कर देनी सेम उस तरह। एंड साडे को ये बेसिक की बन जाना, पहले वाले च की सी कि ऊपर साडे को 1 आउंदा सी, बिकॉज उत्थे इक्को ही टर्म सी, इत्थे साडे को 1 आउंदा सी, बट इत्थे साडे को इधर XN पॉजिटिव, आ वाली चीज़ इत्थे आ जानी, बिकॉज आ वाली चीज़ां 1 ए भी इक्वल टू 1, ए भी इक्वल टू 1, ठीक है। बिकॉज इलैक्ट्रिकल न्यूट्रल साडे को आ दो चीज़ां बच जानी, ठीक है। सो इन्हां दी कॉन्सनट्रेशन भी सानू दित्ती होगी, एंड सिंपली असीं आंसर कर लांगे। इत्थे एक होर एग्जाम्पल हैगी है रिलेटेड, आपां ओह देखदे हां। हुण देखो सानू ये इक्वेशन दित्ती हुई है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, मतलब की हो रहा है कि जिंक जिहड़ा इधर ते न्यूट्रल, मतलब इधर जिंक दी की हो रही है,
ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ LEO ਲਾਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਪਰ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ EMF ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ E cell is equal to E naught cell, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591। हाँ जी, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 n। ठीक है, log पहला आ वाली टर्म लिखनी है Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, फिर थल्ले Zn2 पॉजिटिव प्लस नहीं लिखना। ठीक है, सिंपली इदा ही लिख देना, प्लस प्लस नहीं पा देना ਵਿੱਚ, क्योंकि प्लस पावांगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर जो इनू 1 लिखांगे तो इतने तो +1 हो जाएगा। नहीं जी, +1 नहीं पाना, सिंपली टर्म्स लिखनी है। ठीक है, सो ਸਾਡੇ को ये चीज़ बन गई। ਹੁਣ देखो सानू पता है की हो रहा है, क्योंकि ਅਸੀਂ E0 ਸੈੱਲ ਕੱਢਣਾ है। ठीक है, सानू दोवां ਦਾ अलग-अलग ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ E0 ਸੈੱਲ ਕੱਢਣਾ है। देखो ये तुसी याद रखनी है, नहीं कि इदा ही लिख देना दोवां दा। हुण सानू इहदा दोवां दा दित्ता, असीं EMF बना के ना इन्हां नूं कढना है। हुण वेखो पहले वाले च जिंक की हो रहा है, जिंक दी हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा पहला लिखी दी है 2 लाइन्स। ठीक है, ते कॉपर दी की हो रही है रिडक्शन हो रही है तो कॉपर लिखता। सानू इहदी ऑक्सीडेशन दित्ती होगी, इहदी रिडक्शन दित्ती है, सिंपली इन्हां दोवां नूं ऐड कर दो 1.10 विल गेट द आंसर। नाउ वी हैव टू पुट दिस इन इक्वेशन 1 जो सी पिछे मैं इक्वेशन तुहानूं दस्सी होई सी, आ वाली इक्वेशन। ठीक है, आ वाली E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 over n log xn positive plus yn positive। इहदे विच असीं इहदियां सारियां वैल्यूज पुट करनियां। ठीक है, 1.10 साढ़े को E naught सेल निकला है माइनस 0.591 over 2 log। ठीक है, लॉग एदियां सानू कंसंट्रेशन इहदे थल्ले दित्ती हुई है। ठीक है, पहला आ वाला लिखना, एदी कंसंट्रेशन लिखी इंटू 1। ठीक है, एदी कंसंट्रेशन लिखी, उसे तरह सारा आंसर कट के। ठीक है, यूल गेट द आंसर। देखो भी हुण कई बारी की हो जाता है, इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन आ जाते हैं भी लॉग इत्थे सानू लॉग दी वैल्यू, एक तो पहला सानू ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे लॉग्स हैगे ना वो याद कर लेने चाहिए है। ठीक है, भी ये लॉग की वैल्यू की है, बट अगर तुहानू नहीं याद रहिंदा ना, तुसीं इत्थों तक भी अगर छड्ड दोगे ना पूरा कंप्लीट करके, उपरों तुहाडा ठीक होना चाहिए, तो यू विल गेट द आंसर, तुहानू मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट कोशिश करो कि तुसीं लॉग दी जिहड़ियां छोटी छोटियां वैल्यूज है ना मेन कि लॉग 10 1 हुंदा आ, इदां वालियां याद कर लो। ठीक है, तुहानू लोड पै जाएगी कई बारी। ठीक है, बिकॉज अगर वड्डा लॉग आ जांदा जिवें लॉग 10 माइनस इनवर्स 7 तो वो नहीं होगा, कोई गल नहीं। ठीक है, ये रिलेटेड सारा असी करांगे। ठीक है, ये असी नैक्सट करांगे। अगर मैं गल करा, हाँ ये कुछ भी नहीं रह गया, बेसिक इहदे बाद न्यूमेरिकल्स ही आने हैं। बेसिक इहदे विच न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर तो रिलेटेड अगर आप गल करिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। सो गिब्स फ्री एनर्जी च भी की है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग यूजफुल वर्क। कोई भी असी काम करते हैं, कोई भी यूजफुल काम करते हैं, तो जी अमाउंट ऑफ एनर्जी जी साडी रिलीज होंदी है उन्होंने असी गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। सो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो होंदा है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है कि कई बार क्वेश्चन उदा नहीं निकलता। ठीक है, जिवें आ गया प्रोडिक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुण एक होर फॉर्मूला ये यूज करांगे, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 log Kc। नाउ log Kc की है, log Kc की है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सो N की है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, F इज अ फैराडे एंड नॉट सेल EMF एट द स्टैंडर्ड स्टेट। हुण अगर इहदे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिए, प्रिडिक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये सानू रिएक्शन देती है Zn2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, मतलब जिंक की हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो कॉपर की हो रहा है रिड्यूस। डेल्टा G सानू गिवन हैगा, असी लॉग Kc कढना बड़ा ही ईजी है। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग Kc, माइनस लाना नहीं भुलना, फॉर्मूला याद कर लियो। ठीक है, डेल्टा G की वैल्यू सानू गिवन आ, लॉग Kc असी कढना इनू असी थले ले आए, माइनस डेल्टा G भी माइनस दिता सी, माइनस माइनस कटिया गया, लॉग Kc की वैल्यू आ गई साडे को। ठीक है, इनू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इत्थों तक मैनू लगता होर इस चैप्टर दे विच ज़्यादा कुछ भी नहीं हैगा। यह हैगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। दिस इज़ बेसिकली इलैक्ट्रोकैमिकल। हाँ, हुण इलैक्ट्रोकैमिकल सैल ते इलैक्ट्रोलाइटिक सैल च डिफरेंस की है।
ठीक है, याद कर लो, वैसे आउंदा नहीं हुंदा बट फिर भी यू हैव टू, तुहानूं पता होना चाहिए है क्योंकि कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता, सो तुहानूं पता होना चाहिए है कि। सो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल मैं तुहानूं पिछे भी दस्सिया, इन दिस केस जिहड़ी कैमिकल एनर्जी आ कन्वर्ट होंदी है इलैक्ट्रिकल एनर्जी च, जां तां एनर्जी असीं रिलीज़ जां तां असीं इलैक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जां कंज्यूम करते हैं, तो जां असीं रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दिस इलैक्ट्रोलाइटिक सैल दे विच इन दिस कैमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी, इलैक्ट्रिक एनर्जी करके कैमिकल एनर्जी जिहड़ी प्रोड्यूस होंदी है, ठीक है। सो सॉल्ट ब्रिज सानू इलैक्ट्रोकैमिकल सैल च चाहिए। हुण मैं सॉल्ट ब्रिज की गल करां तां आपां पिछे सॉल्ट ब्रिज पढ़िया सी ना। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज की करन नूं हेल्प करदा, अगर तुहानूं थोड़ा जिहा भी याद होवे तां मैं तुहानूं जदों ओह करवाया सी अपना गैल्वेनिक सैल, सो आई विल टेल यू कि इट हेल्प्स इन मेनटेनिंग द न्यूट्रैलिटी, ठीक है, न्यूट्रैलिटी मेनटेन करन च हेल्प करता। तो सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज दे 3-4 पॉइंट जो मैं करवाई सी वो प्लीज़ तुसी याद कर लियो, कई बारी क्वेश्चन इदा बन के आ जाता कि वट इज़ द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, असीं क्यों यूज़ करते हैं। तो इलैक्ट्रोलाइटिक सैल दे विच देयर इज़ अ नो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तुसी एक बारी इहदा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं कोशिश करांगी कि मैं सारे नोट्स दी जिहड़ी PDF बना के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेंड कर दा, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो उन्ना चਿਰ तक तुसी वेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। In this cell, different electrolytic solutions are taken in different beakers. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ different beaker ਦੀ यूज ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but electrolysis ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ single beaker ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In this case, redox reaction is spontaneous, which produces electricity. Now, what is a redox reaction? ਜਿੱਥੇ reduction oxidation ਇੱਕ simultaneously ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। So in this case, electrolytic cell ਦੇ ਵਿੱਚ redox reaction is non-spontaneous and occur only when electricity is provided. ਇਹ spontaneous मतलब ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ non-spontaneous ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ electricity ਸਾਨੂੰ provide ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ।